دیسی موویز کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ جی دوستو، ہم نے آج پاکستان کی یادگار فلموں کے سلسلے میں ایک ایسی فلم کا انتخاب کیا ہے جس نے نہ صرف کامیابی اور معیار کا وہ ریکارڈ بنایا جو آج تک توڑا نہ جا سکا، بلکہ فلم میکنگ کے روایتی انداز میں جدت پیدا کر کے سلور اسکرین پر تازگی کے تاثر کو نمایاں کیا۔ اس فلم کی نمائش کے بعد کیمرہ ورک اور اسکرین پلے کی اہمیت اجاگر ہوئی کہ اگر کہانی روایتی ہو تو اسے ذہانت کے ذریعے منفرد اور معیاری فلم کے روپ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ جی دوستو، ہم ذکر کریں گے 1977 کی فلم آئینہ کا۔ آئینہ کے ہدایت کار نظر الاسلام تھے۔ ان کا بنیادی تعلق مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے سے تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جہاں متعدد بنگالی اداکار، گلوکار اور فلم میکرز نے پاکستان کو خیر بات کہا تو ان میں شبنم اور رحمان کے ساتھ نظر الاسلام وہ فلمی شخصیات تھیں جنہوں نے پاکستان میں قیام کو ترجیح دی۔ ان میں سے رحمان اور شبنم بعد ازاں بنگلہ دیش چلے گئے، لیکن نظر الاسلام نے پاکستان نہ چھوڑا اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ نظر الاسلام ہدایت کاری کے شعبے میں اپنی منفرد سوچ، جداگانہ کام کی بدولت بلند اور معتبر مقام رکھتے تھے۔ انہیں فلم انڈسٹری میں دادا کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ نظر الاسلام نے جس قدر بھی فلمیں بنائیں ان میں سے زیادہ تر اپنے ٹریٹمنٹ، کیمرہ ورک اور گانوں کی دلکش فلم بندی کے باعث خاص و عام دونوں طبقات میں پسند کی گئیں۔ ہماری آج کی فلم آئینہ بھی انہی فلموں میں سے ایک ہے، اور یہ خاص بات اس فلم سے جڑی ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کی سب سے معیاری فلم قرار پائی بلکہ کامیابی کا جو ریکارڈ آئینہ کے حصے میں آیا وہ آج تک برقرار ہے، بلکہ شاید ہی کبھی ٹوٹ سکے۔ ہم نے یکجا کیا ہے فلم آئینہ سے متعلق تمام تر معلومات کو۔ حسب سابق پیش ہے فلم کا ٹائٹل، یعنی کہ فلم میں کام کرنے والے اداکاروں اور پس پردہ شخصیات کے نام۔ RA شمسی پیش کرتے ہیں کاشف لمیٹڈ کی اردو رنگین فلم آئینہ۔ فلم میں شامل نمایاں اداکار ندیم، شبنم، بہار، ریحان اور ماسٹر شہباز کے علاوہ قوی، نمو، ناصرہ، راشد، نینا، حنیف، زرقا، پروین، بوبی، مینا داؤد، ابراہیم نفیس اور سمی دہلوی۔ اسکرین پلے مکالمے بشیر نیاز، موسیقار روبن گھوش، نغمہ نگار تسلیم فاضلی، اختر یوسف، سرور بارہ بنکوی، گلوکار مہدی حسن، مہناز، نیرہ نور، اخلاق احمد، عالمگیر، ایڈیٹر ارشاد درانی، کیمرامین ایم خلیل، ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی افضل چودھری، میک اپ ایم نذیر، آرٹ حاجی محی الدین، ایگزیکٹو پروڈیوسر نور الدین کیسٹ، فلم ساز اے شمسی اور ہدایت کار نظر الاسلام۔ یہ فلم ایور نیو اسٹوڈیو لاہور اور انٹرنیشنل اسٹوڈیو کراچی میں مکمل کی گئی اور 18 مارچ 1977 کو آل پاکستان نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ Okay, sir. Yes, ma'am. What can I do for you? I want a room. مجھے ایک کمرہ چاہیے۔
सिंगल या डबल? Oh, I want a room. आप अपना हाथ ना तोड़ें, समझ गया, आपको कमरा चाहिए। दोस्तों, जिस तरह भारत फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर फिल्म शोले है, तो हर एक पाकिस्तानी इसी तरह फिल्म आईना पर फख्र करता है। शोले ने अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने की राह हमवार की, तो नदीम हकीकी मानों में आईना के जरिए सुपरस्टार के नाकाबिल तस्खीर मकाम पर बराजमान हुए। हम गुफ्तगू करेंगे आईना के तमाम पहलुओं पर। सबसे पहले हाजिर है फिल्म की कहानी का खुलासा। मैं गलती से समझ बैठी थी कि ये घर मेरा भी है। ये क्या पागलपन है रीटा? जाने दो इसे, 2 दिन में लौट आएगी। ये उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं। जवानी जिन्हें नसीब नहीं होती। नजमा, जिसे सब प्यार से रीटा कहते हैं, नशे में धुत होटल पहुंची। इस्तकबालिया काउंटर पर उसका सामना इकबाल से हुआ। इकबाल यानी कि अदाकार नदीम ने रीटा यानी कि अदाकारा शबनम को उसके कमरे तक पहुंचाया। रीटा ने इकबाल के जाने के बाद बाथ रूम के सारे नल खोल दिए और बाथ टब में बेहोश हो गई। होटल के मुलाजिम ने इकबाल को इतला दी कि रीटा के कमरे से पानी बाहर आ रहा है। इकबाल मास्टर चाबी से कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में पानी भरा हुआ था। रीटा बाथ टब में बेहोश पड़ी थी। इकबाल ने उसे बड़ी मुश्किल से बेड तक पहुंचाया। आपने बाथरूम के सारे नल खोल दिए और टब में लेट गई। सारे कमरे में पानी भर गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से साफ किया, और आपको मैंने वहां से उठाकर बिस्तर पे लाके डाल दिया। आपने मुझे? जी हाँ, मैंने। आपने मुझे? नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली थी। सुबह रीटा ने इकबाल को अपने कमरे में देखा तो गुस्से का इजहार किया। इकबाल ने रात जो कुछ हुआ इस सारे वाक़े से उसे आगाह किया। रीटा ने बताया कि रात पार्टी में किसी ने शरारत करते हुए कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी थी। नशे की वजह से घर ना जा सकी और होटल आ गई। उसने मदद करने पर इकबाल का शुक्रिया अदा किया। इकबाल ने कहा कि हम नशे में मुब्तला लोगों को कमरा नहीं देते, लेकिन हमें मालूम हुआ कि आप शहर के सबसे अमीर और शरीफ सेठ दाऊद की बेटी हैं, तो कमरा दे दिया। वैसे अमूमन हम पी कर आने वालों को अपने होटल में कमरा नहीं देते। आपके बारे में चूंकि पता चला था कि आप एक शरीफ बाप की बेटी हैं और उस हालत में आपका घर जाना ठीक भी नहीं था, इसलिए मैंने आपको कमरा दे दिया। थैंक यू। तो ठीक बात है, आइंदा से अपनी गाड़ी में एक आध फालतू जोड़ा भी रख लिया कीजिए, आपको किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। आपने गलत समझा है, मैं पीती नहीं हूँ। रात आपकी जो हालत थी वो चखने से तो नहीं हो सकती। सेठ दाऊद यानी अदाकार रेहान और उनकी अहलिया यानी कि अदाकारा बहार शहर में बुलंद इज्जत व मकाम रखते हैं। समाजी हलकों में भी उनका बड़ा नाम है। रीटा उनकी इकलौती बेटी है। रीटा और इकबाल की एक और मुलाकात दोनों के मुश्तरका दोस्त हनीफ और जरका की शादी की सालगिरह पर हुई। यहाँ इकबाल ने दबे दबे लफ्जों में रीटा से मोहब्बत का इजहार किया। रीटा भी अब इकबाल को पसंद करने लगी थी। अगली मुलाकात में रीटा ने भी अपने दिल की बात इकबाल से कह दी और ये भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एनी मोर सर्विस? माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत कार्ड दे दिया है, वो मुझे वापस कर दीजिए। जी, वो कार्ड कहाँ रखा मैंने? यही तो था। ये लीजिए दूसरा, और मेरे जाने के बाद भरिएगा क्योंकि शीशे में नजर आता है। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। रीटा और इकबाल की शादी में अमीर गरीब और समाज के छोटे बड़े तबके का फर्क आड़े आया। सेठ दाऊद ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। रीटा अपनी जिद पर कायम रही। सेठ दाऊद बोला, इस घर की इज्जत खिलौना नहीं कि तुम्हारी नादानी इसे सड़कों पर उछालती फिर रहे। अपनी इज्जत पे लगने वाले दाग मिटाने के लिए मैं 1 लाख दे सकता हूँ। मैंने मोहब्बत की है सेठ साहब, कारोबार नहीं। और गरीबों की मोहब्बत का ताजमहल आंख से गिरने वाले आंसुओं से बनता है, आप जैसे सेठों की दौलत से नहीं।
सेठ दाऊद ने रीटा की शादी अपने दोस्त के बेटे गुड्डू यानी कि अदाकार खालिद सलीम मोटा से करने का फैसला किया। रीटा इकबाल के पास पहुंची और कहा कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं। दोनों घर से भागे लेकिन पकड़े गए। रीटा फिर भी अपनी जेद पर कायम रही। उसने कह दिया कि इकबाल से शादी ना हुई तो खुदकुशी कर लूंगी। सेठ दाऊद इकबाल से मिला, भारी रकम का चेक देकर उसे रीटा की जिंदगी से निकल जाने का कहा। इकबाल ने इनकार किया। सेठ दाऊद ने एक और ऑफर की, घर दामाद बन जाओ। इकबाल ने अपना फैसला सुनाया, शादी करूंगा और इज्जत के साथ रीटा को अपने घर लाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? इकबाल से मिलने। मेरे मना करने के बावजूद? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये नहीं सोचा तुमने ना जाने कौन किस वक्त ताना दे बैठे कि सेठ दाऊद की बेटी एक मामूली होटल रिसेप्शनिस्ट के साथ देखी जाती है। मम्मी, वो आपकी नजर में कुछ भी हो, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें क्या मालूम प्यार क्या होता है, किस स्टेटस के आदमी से किया जाता है। इस घर के इज्जत खिलौना नहीं जिसे तुम्हारी नादानी सड़कों पर उछालते फिरे। मेरी मर्जी के खिलाफ चलने वाला इस घर में नहीं रह सकता। रीटा और इकबाल की मोहब्बत के सामने सेठ दाऊद की अना हार गई। दोनों की शादी हो गई, लेकिन सेठ दाऊद और उसकी अहलिया ने ये शादी दिल से कबूल ना की। उन्होंने कोशिश की कि इकबाल होटल की नौकरी छोड़ दे, पुराना घर भी छोड़ दे, कारोबार में हाथ बटाए। रीटा की मां ने इकबाल के घर का फर्नीचर तब्दील कराया, वहाँ फोन भी लगवा दिया। इकबाल ने इस बात का सख्त बुरा मनाया। दोनों में अक्सर इन बातों पर झगड़ा होने लगा। इकबाल ने कहा, जो तुम्हारी माँ कर रही है वो मेरी खुददारी के खिलाफ है। एक दिन दोनों में तलखी इतनी बढ़ी कि रीटा घर छोड़कर अपने बाप के घर आ गई। कुछ दिन गुजरे, इकबाल रीटा को लेने आया तो सेठ दाऊद ने उसे जलील करके घर से निकाल दिया। रीटा से झूठ बोल दिया कि इकबाल आया था, मगर वो तुम्हें तलाक देकर चला गया है। तुम्हारा झुका हुआ सर, आने का अंदाज और आंखों में बेबसी के आंसू बता रहे हैं। वही हुआ जिसका हमें यकीन था। सुबह का भूरा अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूरा हुआ नहीं कहते। अब एहसास हुआ कि माँ बाप भी कोई चीज होते हैं। जाओ ऊपर जाकर सोचो, इस जिद में तुमने क्या खोया और क्या पाया। तकलीफ क्या होगी? तुम्हारी तरक्की की बात ही तो सोच रही थी। मुझे तरक्की की बख्शिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, कल को हमारे घर एक मेहमान भी तो आएगा, क्या हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? आने वाला मेरी जिम्मेदारी है। रीटा माँ बनने वाली थी। जिस दिन उसने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, इत्तफाकन उस वक्त इकबाल भी सर में जख्म आने के बाइस पट्टी करवाने के लिए वहाँ मौजूद था। उसने सुना कि सेठ दाऊद बच्चे को यतीम खाने देना चाहता है। इकबाल ने सेठ दाऊद से कहा कि वो बच्चा उसे दे तो उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। सेठ दाऊद ने बच्चा इकबाल को दे दिया, जिसे वो लेकर पहाड़ी मकाम पर चला गया। सेठ दाऊद ने रीटा को बताया कि तुमने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। ये सुनकर रीटा नीम पागल हो गई। उसने अपने बच्चे की कब्र देखने की जिद की। सेठ दाऊद ने उसे एक छोटे बच्चे की कब्र भी दिखा दी और कहा कि ये तुम्हारे बेटे की कब्र है। रीटा अब हर हफ्ते वहाँ आने लगी। दम घुटता है तुम्हारा, क्यों पड़ी हो इस घर में? चली जाओ अपने माँ बाप के घर। जो दुख देते हो कब के चली जाती है, लेकिन मैं सोचती हूँ हर एक की मुखालफत बोल लेकर तुमसे शादी की। अब मैं तुम्हें छोड़कर उनके पास चली गई तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया के खौफ से पड़ी हो इस घर में। इस घर की इज्जत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं जान गया हूँ रीटा, दौलतमंद बाप की बेटी के लिए गरीब शौहर कभी रास नहीं आ सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अभी और इसी वक्त अपने माँ बाप के घर वापस लौट जाओ। वक्त गुजरने लगा। इकबाल अपने बेटे की परवरिश में मसरूफ हो गया। वो अक्सर उसे वही गीत सुनाया करता था जो कभी उसने रीटा के साथ मिलकर गाया था। 5 साल गुजर गए। एक दिन
रीटा कब्रस्तान आ रही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात इमरान यानी कि मास्टर शाहबाज से हुई। उसने रीटा को फूल दिए। रीटा नहीं जानती थी कि जिसने फूल दिए हैं वो उसके जिगर का टुकड़ा है। इमरान घर आया और अपने बाप इकबाल को रीटा के बारे में बताया। उसने ज़ेद की कि उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाए। इकबाल ने तस्वीर दिखाई तो वो पुकार उठा, ये वही है जिसे मैंने फूल दिए थे, क्या ये मेरी माँ है? वो दौड़ा। रीटा कार में जा रही थी। इमरान ने वही गीत गाना शुरू किया जो इकबाल ने उसे सुना रखा था। रीटा ने सुना तो बोली, गाड़ी रोको, और वो दीवानावार इमरान की जानिब दौड़ पड़ी। और फिर मुझे आज एहसास हुआ मोहब्बत तुमने की थी, उसने नहीं। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं सोचते बेटी। अगर तुमने पहले रोज मेरा कहा मान लिया होता तो मुझे ये सब न सुनना पड़ता जो आज सुन के भी सुनता हूँ। क्या कहा इकबाल ने? उसने तुम्हारी तौहीन की, हमारे खानदान का मजाक उड़ाया, इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। मुझे कहा रीटा से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैंने उसे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, जी दोस्तों, हस्बे रिवायत हम कहानी का अंजाम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर यह गीत और इसके बाद ड्रामाई मनाजिर आईना का उरूज है, जिसमें डायरेक्शन की बुलंदी, मौसीकी की असर अंगेजी, अदाकारी और मुकालमों का बुलंद मेयार और सिनेमाटोग्राफी का शानदार मुजाहिरा गर्ज हर शोबा अपनी मिसाल आप बन जाता है। इसलिए क्लाइमेक्स का भरपूर मजा लें और आईना जरूर देखें और फख्र करें कि 40 साल कबल किस कदर शानदार फिल्म बॉलीवुड ने बनाई। हम बदनसीब रहे कि दादा नजरुल इस्लाम ने मयारी फिल्म बनाने की जो राह दिखाई, इस पर सफर जारी ना रख सके और कुछ ऐसे भटके के आज अपनी मंजिल से भी बहुत दूर चले गए हैं। ये बच्चा शहर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन क्या? वो दूसरी शादी करेगी और अगर किसी को मालूम हो गया कि वो माँ बनी थी तो बच्चा उसकी खुशियों के रास्ते में दीवार बन जाएगा। तो वो बच्चे को नहीं अपनाएगी? जिससे नफरत हो जाए उसकी किसी चीज से प्यार नहीं होता। आईना बशीर नियाज साहब के कलमी जौहर का एक शाहकार है। बशीर नियाज को पाकिस्तान की सबसे कामयाब उर्दू फिल्म आईना और सबसे कामयाब पंजाबी फिल्म साला साहब के मुसन्निफ होने का एजाज हासिल है। उनके क्रेडिट पर और भी शाकार उर्दू और पंजाबी फिल्में हैं। फिल्म आईना के शोबाई कहानी में किसी का नाम टाइटल पर ना देने के सवाल पर उन्होंने हमें एक मुलाकात के दौरान बताया था कि फिल्म की कहानी एक मशहूर नॉवेल से ली गई थी, जिस पर इन्हीं दिनों में एक फिल्म बन रही थी, तो कॉपीराइट्स की वजह से कहानी पर नाम नहीं दिया गया। अलबत्ता हमने बुनियादी कहानी में कुछ इजाफी किरदार शामिल करके इसे तब्दील जरूर किया था। स्क्रीन प्ले और मुकालमे के शोबे में मेहनत की। दादा नजरुल इस्लाम और मैं कहानी की तैयारी के लिए 1 माह मरी के होटल में कमरा बंद करके महदूद हो गए थे। बशीर साहब के मुताबिक आईना की फकीदुल मिसाल कामयाबी के बाद तो हमारी आदत बन गई कि जब भी दादा के साथ किसी प्रोजेक्ट में काम का मौका मिलता, हम इसी तरह कमरे में बंद होकर स्क्रिप्ट तैयार किया करते थे और एक से बढ़कर एक फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हमने दी। नहीं सेठ साहब, बाप के होते हुए बच्चा यतीम खाने में पले एक दौलतमंद बाप तो सोच सकता है, गरीब नहीं। उसकी अमीर माँ शादी करना चाहती है तो शौक से करे, बच्चा उसका गरीब बाप पालेगा। आईना की नुमाया खूबी जिसका कामयाबी में बुनियादी किरदार करार दिया गया, वो इसका शोबा मौसीकी भी है। फिल्म के 100% गाने सुपरहिट अवामी पजीराई इन्हें मिली। हर गीत अवार्ड याफ्ता रॉबिन घोष ने धुनों की तरतीब में अपनी इनफरादियत कायम रखी। आलमगीर, मेहदी हसन, महनाज, नैयरा नूर साल के बेहतरीन गुलकार करार पाए। हस्बे साबिक दादा नजरुल इस्लाम का खासा के फिल्म के गीत सिर्फ भर्ती के नहीं थे, बल्कि कहानी को
आगे बढ़ाते हैं। क्लाइमैक्स गीत तो फिल्म की हाईलाइट बन जाता है। बिला शुबा आईना रॉबिन साहब की यादगार फिल्मों में सबसे ऊपर है। मेरा बच्चा नहीं मर सकता, नहीं, नहीं, नहीं। पसे पर्दा शख्सियात में अगर हम सिनेमाटोग्राफर अफजल चौधरी का जिक्र ना करें तो ना इंसाफी होगी। उन्होंने शॉर्ट डिवीजन और स्क्रीन प्ले के मुताबिक मनाजिर को इस कदर खूबसूरत और मुनफरिद जावियों से महफूज किया कि लॉलीवुड स्क्रीन पर ये मनाजिर इस मेयार के साथ इससे पहले पेश नहीं किए गए थे। ऐसा लगा जैसे लॉलीवुड की मुरझाई स्क्रीन पर रंगो रोशनी की बहार उमड़ आई हो। इस कदर शानदार कैमरा वर्क के दौरे जदीद में भी फिल्म मेकर्स के लिए मशले राह है। वो हमसे नफरत करने लगी है, तुम उसका दिल साफ क्यों नहीं करते थे? कैसे करूं? रीटा को उस पहाड़ पे लो जहां तुमने उसके बच्चे को दफन किया था, उसे वो कब्र दिखा दो। आईना की कास्ट में दर्जनों अदाकार शामिल हैं, लेकिन जिक्र सिर्फ 4 फनकारों का नुमाया रहेगा: शबनम, नदीम, रेहान और बहार। फिल्म का कैमरा शबनम पर खुलता है और उन्हीं पर क्लोज। शोभा अदाकारी में वही नंबर 1 और उरूज पर दिखाई देती हैं। उनके किरदार के कई रूप हैं और हर अंदाज में वो पुरवकार और यादगार परफॉर्मेंस के साथ जलवागर हुई। उनके बाद नंबर आता है नदीम का। नदीम ने रिवायती हीरो की केमिस्ट्री को पुरवकार अंदाज में पेश करके उस वक्त के हीरोज में अपनी इनफरादियत साबित की। जहां जहां उन्हें मौका मिला स्क्रीन पर छा जाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। आज हम अपने इस सिलसिले के जरिए लॉलीवुड के एक अजीम फनकार से इस फिल्म के तनाजुर में होने वाली नाइंसाफियों का अजाला भी करेंगे कि उन्हें आईना में शानदार अदाकारी पर वो पजीराई ना मिली जो उनका हक थी। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र करेंगे अदाकार रेहान का। रेहान साहब इस नौयत का किरदार दिल लगी और मेरा नाम है मोहब्बत में कामयाबी से अदा कर चुके थे, मगर आईना में उनका किरदार पुरवकार अंदाज के साथ जलवागर होता है। रेहान साहब की सिर्फ ये एक परफॉर्मेंस ही उनके लीजेंड स्टार्स की फहरिस्त में शमूलियत के लिए काफी है। बहार ने भी अपने सीनियर अदाकार होने का भरपूर अदा किया और जहां आई याद रह गईं। 5वां अहम किरदार मास्टर शाहबाज का है। खास तौर पर क्लाइमैक्स गीत में उन्होंने मेला लूट लिया। कब्रों पे उगने वाला ये फूल जाकर अपनी माँ के जूड़े में सजाओ। मेरी माँ नहीं है सेठ जी। तुम्हारी माँ नहीं है तो हम क्या करें? हमारी बेटी पहले ही बहुत परेशान है, इसे और परेशान मत करो। जाओ। तुम कहाँ जा रही हो रीटा? ये तुम्हारा बेटा नहीं है। दोस्तों, मेयार के साथ मकबूलियत और कामयाबी के रिकॉर्ड भी आईना ने बनाए। भारत में फिल्म के कई चरबा तैयार हुए, जिनमें सबसे नुमाया मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार झुकता नहीं गानों समेत नकल की गई। एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी में कई मनाजिर आईना से नकल करके शामिल किए गए। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में 5 साल मुसलसल नुमाइश पजीर रहने का एजाज सिर्फ और सिर्फ आईना को हासिल हुआ। ये फिल्म 401 कंबाइंड हफ्ते मुकम्मल करके क्राउन जुबली का एजाज हासिल करने वाली वाहिद पाकिस्तानी फिल्म है और ये वो रिकॉर्ड है जो शायद ही अब तोड़ा जा सके। मैं तलाक लेना चाहती थी, ये झूठ है। मैंने डैडी को तुम्हें लेने के लिए भेजा तो तुमने 10 आदमियों के सामने उन्हें जलील किया और कहा कि तुमने मुझे तलाक दी। मैंने तलाक दी? यहाँ आकर बच्चे को जन्म देने का खर्च मंसूबा भी मैंने बनाया। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म
आईना। 19 जुलाई को फिल्म के हीरो नदीम की सालगिरह का दिन है, तो हम उनके परस्तारों के लिए देसी मूवीज की ये वीडियो तोहफे के तौर पर पेश कर रहे हैं। और अगर आप आईना देखने की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे वही एक बात कहते चलें कि आईना देखने के लिए फुर्सत और सुकून जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें आपको मुयस्सर हैं तो आईना जरूर देखें। अगली फिल्म तक यासीन हमीद को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।